عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ بنگلورو میں کوکین فروخت کرنے کے الزام میں نائجیریائی شہری ہوا گرفتار۔ حج 2021 صرف 24 گھنٹے میں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول، جانے سال رواں کتنے افراد کو ملے گی اجازت۔ ٹویٹر کے بعد اب انسٹاگرام کے خلاف ایکشن کی تیاری، 18 جون کو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ۔ بکسر میں کرنٹ لگنے سے کسان کی ہوئی موت۔ عقیدے میں موقع تلاش کرنا گناہ عظیم، رام مندر اراضی گھوٹالے کی جانچ ہو، پرینکا گاندھی کا مطالبہ۔ سیاہ، سفید اور زرد کے بعد اب سبز فنگس کا خطرہ، پہلے معاملے کی تصدیق کے بعد ڈاکٹروں میں تشویش۔ گجرات کے اسپتالوں میں خاتون تیمارداروں سے جنسی استحصال کا الزام، جانچ کمیٹی تشکیل۔ مسلمانوں کو سیاست کے تئیں فکر و ذہن میں تبدیلی لانے کی ضرورت، ڈاکٹر ایوب کا بیان۔ جموں کشمیر میں بے روزگاری سے نوجوان ذہنی تناؤ کا شکار، نیشنل کانفرنس کا بیان۔ ہاتھرس معاملہ، صحافی کپن اور 3 دیگر کے خلاف امن و امان خراب کرنے کے الزامات رد۔ اسرائیل کا غزہ پر پھر فضائی حملہ، غباروں کے جواب میں گولے داغے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں زبردست ہنگامہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں ہاتھا پائی۔ ترکی آج اور مستقبل میں اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا، صدر ایردوغان کا بیان۔ اخوان المسلمین کے لیڈروں کی پھانسی رکوائی جائے، عرب کونسل کا بیان۔ خطہ افریقہ میں بچوں کی کثیر تعداد تعلیمی سرگرمیوں سے محروم۔ اسرائیلی پولیس فلسطینی تحریک پسند الحمانی کو گرفتار کر کے لے گئی۔ کٹر یہودیوں کا مارچ، بیت المقدس میدان جنگ بن گیا۔ کولمبیا میں فوجی قافلے پر حملہ، درجنوں فوجی زخمی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سینٹرل کرائم برانچ CCB پولیس نے نائجیریائی شہری کو کوکین فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے اس کے پاس سے 4 لاکھ روپے کی نشاور اشیاء برآمد کی ہے۔ پولیس نے بدھ کے روز بتایا کہ گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت نائجیریا کے کیلوین ایڈیکا، جس کی عمر 24 کے طور پر ہوئی ہے۔ بنگلور CCB کے اینٹی نارکوٹکس ونگ نے اپنے بیان میں کہا کہ گرفتار ملزم ویزا پر بنگلور آیا تھا اور وہ نشاور اشیاء فروخت کرنے میں ملوث تھا۔ ناظرین، سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے گزشتہ روز رواں برس حج کی درخواستوں کے لیے لنک جاری کیا اور صرف 24 گھنٹے کے اندر وہاں 4.5 لاکھ درخواستیں موصول ہو گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ویب سائٹ کے سعودی عرب میں مقیم ملکی و غیر ملکی شہریوں کی جانب سے اب تک حج کے لیے 4,50,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ موصول ہونے والی درخواستیں صرف 24 گھنٹوں میں ملی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے لنک 24 گھنٹے قبل جاری کیا تھا۔ ناظرین گرامی، مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر کے بعد اب فوٹو اور ویڈیو نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام سائٹ بھی جانچ کے گھیرے میں ہے۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کی ٹیم نے ایک بڑی کارروائی کو انجام دیتے ہوئے انسٹاگرام کے خلاف ایک معاملہ درج کیا۔ گزشتہ کچھ وقت سے انسٹاگرام پر مذہبی اور فرقہ وارانہ ماحول کو خراب کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ اسپیشل سیل کے ذرائع کے مطابق درج FIR میں فی الحال کسی شخص کو نامزد ملزم نہیں بنایا گیا ہے۔ اس FIR میں منگل کو درج کیا گیا تھا۔ اس میں دفعہ 153A مذہبی گروپ کے خلاف ایک دوسری کمیٹی کے درمیان آپس میں فرقہ وارانہ ماحول کو ہوا دینا کا بھی ذکر کیا ہے۔ معاملہ درج ہونے کے بعد اسپیشل سیل کی ٹیم جلد ہی پوچھ گچھ کے لیے نوٹس بھیج کر انسٹاگرام اکاؤنٹ سے جڑے افسران کا بیان درج کرے گی۔ اس کے بعد اس معاملے میں اعلیٰ سطحی کارروائی کو انجام دیا جائے گا۔ ناظرین، بہار میں بکسر ضلع کے مفصل تھانہ علاقے میں بدھ کو کرنٹ لگنے سے بزرگ کسان کی موت ہو چکی ہے۔ پولیس ذرائع نے یہاں بتایا کہ ایجیری گاؤں باشندہ دوبری ساہ آج صبح کھیت میں کام کر رہے تھے۔ اسی درمیان کھیت میں گرے بجلی تار کی زد میں آ کر جب تک وہاں موجود لوگ سمجھ پاتے تب تک کسان کی موت ہو چکی تھی۔
नाज़रीन, अयोध्या में राम मंदिर तामीर का अमल जोरों शोर से जारी है, लेकिन इस दरमियान जमीन खरीदारी को लेकर शुरू हुआ तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले करते हुए जमीन खरीदारी में किसी भी तरह का घोटाला होने से इनकार किया है, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियां बीजेपी को कटहरे में खड़ा करके लगातार पूरे मामले की जांच का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी मुतालबा किया है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि खबरों के मुताबिक जमीन खरीदारी में 18.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। प्रियंका गांधी ने इस ताल्लुक से फेसबुक पोस्ट किया, जिसमें तफसील के साथ अपनी बात रखते हुए लिखा कि 2 करोड़ की जमीन से 5 मिनट के बाद वज़ीर-ए-आज़म के जरिए तश्कील श्री राम मंदिर तामीर ट्रस्ट की जानिब से 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली गई, यानी जमीन की कीमत 5.5 लाख रुपए फी सेकंड की शरह से बढ़ गई है। क्या इस पर कोई यकीन कर सकता है? मत भूलिए, सारा पैसा हिंदुस्तानी अवाम के जरिए मंदिर तामीर के लिए अतिये की शक्ल में दिया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना से शिफायाब होने वाला एक शख्स ग्रीन फंगस से मुतासिर पाया गया है। ब्लैक सिया फंगस, व्हाइट सफ़ेद फंगस और येलो जर्द फंगस के बाद मुमकिन तौर पर मुल्क में सब्ज यानी ग्रीन फंगस का पहला मामला है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप कलेरिया ने गुज़िश्ता महीने फंगस के रंग के हवाले से मुतनब्बा करते हुए कहा था कि इस मामले में गुमराहकुन मामूलात नहीं फैलाई जानी चाहिए। नाज़रीन, गुजरात के जामनगर वाक़ सरकारी जीजी अस्पताल, जो कि अभी नामजद कोविड केयर सेंटर है, कि खातून तीमारदार के ज़रिए अस्पताल मैनेजमेंट पर खातून तीमारदारों पर खिदमत जारी रखने के बदले जिस्मानी रिश्ता कायम करने का दबाव बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस इल्ज़ाम के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। तनाज़ा बढ़ने के बाद गुजरात हुकूमत ने पूरे मामले की जाँच के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। रियासत के वज़ीर आला विजय रूपानी ने बुध को खातून तीमारदारों के जरिए लगाए गए जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात की जाँच का हुक्म दिया और जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी। खातून तीमारदार ने मंगल को इल्ज़ाम आयद किया था कि अस्पताल इंतजामिया के जरिए खातून तीमारदारों यानी अटेंडेंट्स पर उनकी सर्विस जारी रखने के लिए उनके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने का दबाव बनाया जा रहा था। नाज़रीन, मुल्क में मुसलमानों की कौमी ज़िंदगी को हकीकी ख़तरों का सामना है। एक मशकूक और बेयकीनी मुस्तकबिल की तरफ किसी ऐसी मिल्लत का सफ़र जो 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, हैरतनाक और तशवीश अंगेज़ है। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में 7 दहाई तक मुसलमानों की रहनुमाई का मनसब रहा हो, वह आज़ादी से कबल उसके बाद की सियासी सूरत हाल के दरमियान नौयत के फ़र्क को पहचानने में नाकाम रहे। खुसूसी तौर से नई सियासी सबबंदी पर भी उनकी नज़र नहीं गई। आज मुसलमानों को सियासत के तय मज़ीद बेदारी के साथ फ़िक्र व ज़हन में तब्दीली की ज़रूरत है। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन यहाँ शहर के जोगापुर महल्ले के एक मैरिज हॉल में आज किसान पार्टी के जरिए मुनाकिदा सेमिनार को बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए मज़कूरा तासुरात का इजहार किया था। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अली मोहम्मद सागर ने इल्ज़ाम लगाया है कि जम्मू कश्मीर का हर एक शोबा इस वक्त तनज़्ज़ुली का शिकार है, जिसमें हुक्मरान और आला अहदों पर फाइज लोग तामीर व तरक्की और अमन अमान के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर हालात इन दावों के आइन बरअक्स है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान कश्मीर को अंधेरे में धकेलने के सिवा और कोई काम नहीं हुआ। तामीर व तरक्की का कहीं नामो निशान नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है, जबकि इजहार राय की आज़ादी मुकम्मल तौर पर सल्ब कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुसलसल 2 साल बंद रहने से यहाँ बेरोज़गारी एक बहुत ही संगीन मसला बनकर सामने आया। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बेरोज़गारी हद से तजावुज़ कर गई और हुकूमत इस जानिब कोई भी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर रही। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च और कागज़ी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश की मथुरा की एक मकामी अदालत ने केरल के सहाफ़ी सिद्दीक कुप्पन और 3 दीगर लोगों को अमन अमान को ख़राब करने के इल्ज़ाम में मंगल को बरी कर दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले की जांच तयशुदा 6 महीने में पूरा नहीं कर पाई। दिफाई फरीक के वकील ने मज़कूरा जानकारी दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ताल्लुक़ होने की शिबह में कुप्पन उनके मुबैना साथियों को 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। ये लोग हाथरस में खातून के साथ हुए गैंगरेप और कत्ल के मामले में उसके गाँव जा रहे थे। दिफाई फरीक के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट रामदत्त राम ने मंगल को मुलजिमीन अतीकुर्रहमान आलम, सहाफ़ी सिद्दीकी कुप्पन और मसूद अहमद को इल्ज़ाम से बरी किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वकील ने बताया कि CRPC की दफ़ा 116 के तहत कार्रवाई की तय हद होने की वजह से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ाम रद्द कर दिए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में होने वाला बजट इजलास हंगामा आराई के नज़र होगा, जिसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान बाहम दस्तगिरेबा नजर आए। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान विफाकी वज़रा समेत हुकूमती अरकान ने शोरगुल करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक PTI से ताल्लुक़ रखने वाली स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली में पेश आने वाले वाक़यात को मायूस कुन करार देते हुए कहा कि इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी।
हंगामा आरई के दौरान हुकूमत या अपोजिशन अरकान की जानिब से बजट की कापियां एक दूसरे पर फेंकी गई। इसी दौरान तहरीक इंसाफ पार्टी PTI की रुकन असम्बली मलिका बुखारी जख्मी हो गई। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत और नशरियात फर्क हबीब का कहना था कि मलिका बुखारी की आंख पर बजट की किताब मारी गई है, जिससे उनकी आंख जख्मी हो गई। किताबी उछालने के अमल में सिक्योरिटी स्टाफ भी जख्मी हो गया है। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की आज और मुस्तकबिल में अपना तमाम तर वसाइल के साथ आज़रबाईजान के शाना बशाना खड़ा होगा। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज़रबाईजान कौमी असम्बली से अपने खिताब में किया। उन्होंने कहा कि काकेशिया में अमन और सुकून आज़रबाईजान बल्कि आर्मेनिया समेत खित्ते के तमाम ममालिक और फ़ायदा उठाएंगे। हम समझते हैं कि पायदार अमन का रास्ता खित्ते के तमाम लोगों और रियासत के माबैन बाहमी ताउन के ज़रिए ही मुमकिन है, जो बाहमी एतमाद की बुनियाद पर ही हो सकता है। नाज़रीन, अरब कौंसिल ने इख्वान मुस्लिमीन के सफ़े अव्वल के लीडरों समेत 12 अफराद को फांसी की सज़ा माफ़ करवाने के लिए आलमी बरादरी और हुकूक़ इंसानी के इदारों से मुतालबा किया है। ट्यूनिस के साबिक़ सदर मुनसिफ अल-मरज़ूक़ी की सदारत में अरब अवाम के जमहूरी हुकूक़ का दिफ़ा करने वाली कौंसिल ने अपने बयान में मिस्री अदालत से इख्वान मुस्लिमीन के लीडरों से मुतालिक फ़ैसलों की मज़म्मत की है। बयान में आलमी बरादरी और हुकूक़ इंसानी के इदारों से उन अफराद की फांसी की सज़ा माफ़ करवाने का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, इसराइली पुलिस ने मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ़िलिस्तीनी तहरीक पसंद हनादी अल हलवानी को गिरफ्तार कर लिया। मकामी ज़राए के मुताबिक हलवानी मशरिक़ अल-कुद्स के कदीम शहर में वाक़ मस्जिद अल-अक़सा के बाबुल अस्बात से गिरफ्तार की गई हैं। सोशल मीडिया पर जारी बाज़ मनाज़िर में हलवानी को मुतादिद पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है, जिन्हें पुलिस ज़बरदस्ती थाने ले गई है। इससे बेशतर मस्जिद अल-अक़सा में दाखिले पर 6 माह की पाबंदी का सामना करने वाले अल-हलवानी आज पहली बार हरम शरीफ में दाखिल होने की कोशिश में थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ वादी अल जोस में वाक़ई घर पर भी छापा मारते उनके शोहर को हिरासत में ले लिया था। नाज़रीन, गुज़श्ता रात गए तक मशरिक़ अल-कुद्स में हज़ारों कट्टर कौम परस्त यहूदियों ने मार्च किया है। शुरका अरब शहरियों के लिए मौत और तुम्हारे पूरे देहातों में आग लगे जैसे नारे लगाते रहे। ये मार्च मशरिक़ अल-कुद्स पर सन 1967 में इसराइल के कब्ज़े की याद में किया गया और यही वजह कि फ़िलिस्तीनी उसे इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पर देखते हैं। इस मार्च के खिलाफ फ़िलिस्तीनियों ने भी एहतिजाज किया। इसराइली रेल और फ़िलिस्तीनियों के एहतिजाज के बाद बैतुल मक़दिस मैदान जंग बन गया। इसराइली क़ुव्वतों ने फ़िलिस्तीनियों पर अश्क-आवर गैस फेंकी, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि कई फ़िलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली कौम परस्तों की रैली के खिलाफ फ़िलिस्तीनियों की जानिब से बैतुल-लहम और ग़ज़ा में मुज़ाहरे किए गए। वाज़ेह रहे कि शुरका ने मार्च उन इलाकों में किया जो न सिर्फ यहूदियों बल्कि मुसलमानों के लिए भी इंतहाई हसास तस्वुर किए जाते हैं। नाज़रीन, कोलंबिया की शिमाली सांतांदर इलाकाई इंतजामिया में एक फ़ौजी काफ़िले पर 2 कार बम हमलों के नतीजे में 36 फ़ौजी ज़ख्मी हो चुके हैं। मकामी प्रेस के मुताबिक जोजो तानामी शहर में सरकारी फ़ौज से वाबस्ता 30वें ब्रिगेड के फ़ौजियों पर 2 कार बम हमलों की कोशिश हुई। इस वाक़े में 36 फ़ौजी ज़ख्मी हुए। सदर ऐवान डेविक ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर वज़ीर दिफा डेगो मोलानो को तफ्तीश का हुक्म दिया है। दरियासना मोलानो ने अपनी ट्वीट में फ़ौजी कमांडरों के हमरा जायका पर पहुँचने की इत्तला भी दी है। नाज़रीन गिरामी, अफ्रीका में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वबा और मुसल्लह तनाज़ात की वजह से लाखों बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं। इंसानी हुकूक़ की तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने अपने तहरीरी बयान में बच्चों को बाहिफाज़त तालीमी सरगर्मियों को लौटने के लिए मौजूद माहौल के क़याम में हुकूमतों और आलमी तंजीमों को अपना अपना किरदार अदा करने की अपील की है। बयान में वाज़ेह किया गया है कि आम वबा और दहशतगर्दी के वाक़यात के बाइस बच्चों की कसीर तादाद तालीम के ज़ेवर से महरूम है। दुनिया भर में एक रिपोर्ट के मुताबिक 160 मिलियन बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर इस वक्त मजबूर हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।